आज हम बात करेंगे उस स्पोर्ट्स के बारे में जो हमें बहुत पसंद है। इतना पसंद है कि शायद क्रिकेट से ज़्यादा PS5 और Xbox पे हम यही गेम खेलते हैं। Yes, you're right, we are talking about football. A game जहाँ पर हम गोल्स तो सेलिब्रेट करते हैं बट अपने इंडियन गोट को ही इग्नोर कर देते हैं। And more in sports, I was more inclined towards football, and in football, more in Indian football. Because of course, Chetri. Because Chetri और मैं साथ में ही बड़े हो रहे थे. So I was following his career from his day one, from the time he started playing for City Club in Delhi. Wow. The first player I signed was this player called Anwar Ali. हमारे इंडिया के जो गोट हैं सुनील छेत्री, राइट, आई थिंक ही इज नंबर 4 अमंग्स द टॉप 5 गोल स्कोरर। उनको ड्यू क्रेडिट मिलता है हमारे देश में। मेसी के साथ भी हुआ था। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मेसी के साथ नहीं हुआ है, इट्स जस्ट दैट कि एक पर्टिकुलर वेन्यू पे एक बैड इंसिडेंट हो गया, इसलिए बाकी वेन्यूज learned their lesson. फुटबॉल लवर्स हैं ना, they are also questioning the credibility of Mr. Kalyan Chaube. If your kid is, let's say, 7-8 years old, start with a football school which is very close to your house, ताकि distance की वजह से class miss नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं हमारी कंट्री में जो स्पोर्ट्स नहीं खेलते बट दे वांट टू गेट इनटू स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इन इटसेल्फ इज अ वेरी गुड करियर, बहुत ग्लैमरस दिखता है। हाउ ट्रू इज इट, लाइक कितना ग्लैमरस है? इंडियन प्लेयर्स aren't good enough for European leagues. One advice you would want to give to all the young football followers and aspirational players that will help them in their future. Hello everyone and welcome to yet another very interesting episode of my podcast Beautifully Candid with Gurpreet #KeepingItReal. आज हम बात करेंगे उस स्पोर्ट्स के बारे में जो हमें बहुत पसंद है। इतना पसंद है कि शायद क्रिकेट से ज़्यादा PS5 और Xbox पे हम यही गेम खेलते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली उस गेम में भी हम अपनी टीम को नहीं चुनते और हम जानेंगे ऐसा क्यों है एंड व्हाट कैन वी डू to make it better. And hence, I today have someone in my show who is not just an insider, who does not just manage the footballers, but he manages the truth of this game. Yes, you're right, we are talking about football. A game जहाँ पर हम goals तो celebrate करते हैं, but अपने Indian goat को ही ignore कर देते हैं. And let's talk about all of these inside issues with none other than Sonu Lamba, who is not just an insider, as I said, but also he is one of the first FIFA licensed agent and the owner, director of Four Flags. Welcome to the show. Thank you, Gurpreet. Thank you for having me here. You're most welcome, Sonu. Sonu, let's get started, okay, and talk about your journey. Okay. आप मर्चेंट नेवी में थे Yes. and suddenly while you got your promotion you decided to move to FIFA licensed agent. What happened? तो मर्चेंट नेवी में था because came from a humble background. Money was very important while growing up. तो एक ही एम था लाइफ में कि पैसा कमाना है. But then नॉलेज इतनी थी नहीं, गाइडेंस नहीं था, सपोर्ट नहीं था. किसी ने बोला मर्चेंट नेवी में जाओ, देयर इज लॉट ऑफ मनी एंड दैट्स इट. उसके अलावा मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मर्चेंट नेवी में होता क्या है. बट आई वाज ऑलवेज इनटू स्पोर्ट्स. आई यूज्ड टू प्ले अ लॉट व्हेन आई वाज इन स्कूल. मर्चेंट नेवी में चला गया, देन बट मन नहीं लगता था. माई हार्ट वॉज ऑलवेज इनटू स्पोर्ट्स. सो एवरी टाइम द शिप यूज्ड टू कम ऑन पोर्ट, everyone used to run out to a club or to a shopping mall. I used to run to a internet cafe. उस टाइम इंटरनेट भी नहीं होता था इतना. Just to know the scores कि क्या हुआ उस मैच में. So my heart was always there. So then in 2013 my daughter Natalia was born. And कुछ प्लान नहीं था, कोई दूर दूर तक मैंने सोचा नहीं था कि मैं क्या करना चाहता हूँ. But the moment I held her in my arms and I looked at her and I was like तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा. एंड देन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग कि मुझे क्या करना है. एंड देन एट दैट मोमेंट आई थॉट कि ओके, अगर मेरे को चांस ही लेना है, आई माइट एज वेल डू समथिंग विच आई एम रियली पैशनेट अबाउट. एंड इट वॉज स्पोर्ट्स. एंड मोर इन स्पोर्ट्स आई वॉज मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स
football, and in football more in Indian football. Okay. Because of course Chetri, because Chetri और मैं साथ में ही बड़े हो रहे थे. So I was following his career from his day one, from the time he started playing for City Club in Delhi, then to moving to Mohun Bagan. So that's how I took the switch. ओके सो जब आपने ये कंपनी फॉर्म करी फोर फ्लैग्स यू आर इनटू टैलेंट स्काउटिंग पीआर मार्केटिंग कंसल्टेशन एंड कॉन्ट्रैक्टिंग एज वेल राइट आपका फर्स्ट प्लेयर कौन था जिसे आपने ऑनबोर्ड किया So एक ऑब्वियस आंसर उसका होना चाहिए था कि छेत्री मेरा फर्स्ट प्लेयर था. व्हिच वी अज्यूम्ड हाँ, बट देन तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मुझे मर्चेंट नेवी के बाद क्या करना है. बहुत परेशान था, समझ नहीं आ रहा है. देन छेत्री का एक मैच था गोवा में एंड दे नीडेड अ ड्रॉ टू विन. ओके इट वाज अगेंस्ट मोहन बागान. ओके तो मैच हुआ 1-1 ड्रॉ हो गया. छेत्री ने गोल मारा, ये लोग चैंपियन हो गए. छेत्री वाज प्लेइंग फॉर चर्चिल ब्रदर्स. हम लोग बहुत खुश हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, रात भर सेलिब्रेट किया. अगले दिन मॉर्निंग में मैं और वो बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं एंड देन वन थिंग लेड टू अनदर. कॉन्वर्सेशन केम अप कि उसके रोनाल्डो के एजेंट ने मेड मोर मनी देन रोनाल्डो इन दैट पर्टिकुलर ईयर. ओके एंड देन आई गॉट इंट्रीग्ड के व्हाट इज अ फुटबॉल एजेंट. उसने बताया कि ऐसे ऐसे फुटबॉल एजेंट होता है एंड दिस इज व्हाट दे डू. एंड देन आई आस्क्ड हिम इज इट व्हाई वी आर नॉट डूइंग इट इन इंडिया. उसने बोला कि नहीं, बिकॉज ट्रस्ट नहीं है, इट्स नॉट दैट बिग. एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग. Then Cheti was like, okay, if you really want to do it with all your heart and soul, how Chetri is. But then do not expect me to handhold you. ओके I can promise you, तेरी लाइफ में 1000 problems आएंगी, money will not be one. ओके But I will never call anyone. I will never introduce you to anyone. That you have to do it yourself. Otherwise, तू कभी नहीं सीख पाएगा. And then he said, I've worked really, really hard. So, sign 10 players वाओ and then I'll be your 11th one because of his jersey number. ओके So, that's how he became my 11th player. वाओ The first player I signed was this player called Anwar Ali. ओके And there are two Anwar Alis now. एक young player भी है. He's also a stopper back. Again, both Anwars are like top. उस time पे Anwar was playing for India. राइट And it was, he was a Punjabi player. And Punjabi, mostly, if you know Punjabi people, वो लोग कैसे होते हैं कि अरे पाजी यार देखी जाओगी, आपने बोल दिया हो गया. एंड उसने कोई सवाल नहीं पूछा कि ठीक है पाजी आप यू टेक केयर ऑफ माई करियर एंड आई विल सी. या अनवर ने साइन किया बिकॉज अनवर वॉज अ बिग नेम that gave me a lot of credibility. ओके Then all the other young players started trusting me. राइट And that's how the ball started rolling. वाओ ओके आई थिंक हम सबको ये लगता था कि सुनील छेत्री वुड बी योर फर्स्ट प्लेयर ऑन बोर्डेड बट आई थिंक सुनील बीइंग सुनील Yes. वाज वेरी क्लियर कि Yes. क्रेडिबिलिटी बिल्ड कर लो और उसके बाद मैं ऑन बोर्ड आऊँगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्लेयर्स लाइक अनवर बट हमारे इंडिया के जो गोट हैं सुनील छेत्री राइट आई थिंक ही इज नंबर 4 amongst the top 5 goal scorers राइट. उनको ड्यू क्रेडिट मिलता है हमारे देश में? See, I would say मिलता है but उतना नहीं जितना मिलना चाहिए. Imagine somebody who has put India's name Yeah. at the world map. Like FIFA took out this post where he was third active international goal scorer, highest. उस टाइम FIFA उसको कर रहा है. बट उस लेवल का हमें मुझे लगता है इंडिया में नहीं मिलता है. बट फिर भी कंसिडरिंग द वे फुटबॉल इज इन इंडिया, ही स्टिल मेड हिज नेम. Of course he has. Yeah. इससे बहुत ज़्यादा मिलना चाहिए, बहुत बहुत ज़्यादा मिलना चाहिए बिकॉज उसने एक ऐसे स्पोर्ट में अपना नाम करके दिखाया है जिसको इतना सपोर्ट नहीं है. He fought his ways, learned his things. बहुत हार्ड वर्क करता है वो, अपने ऊपर बहुत हार्ड वर्क करता है चीज़ों के ऊपर. The way he helps the kids also. मुझे ऐसा लगता है उसको इससे कहीं ज़्यादा मिलना चाहिए. Right. उतना नहीं मिलता है बट आई थिंक इफ यू consider lot of other sports which हम लोग बहुत सारे स्पोर्ट्स में there are lot of athletes जो बहुत अच्छा करते हैं, ओलंपिक्स तक गए हैं, उनको भी नहीं मिल रहा है. तो इसलिए हमको लगता है कि that's the way it is. Right. So we are basically accepting something which we shouldn't, Yes. right? Let's talk about this particular situation only. अभी recently Messi आए.
हमने 100 करोड़ सिर्फ उनको दिए आने के लिए, राइट? ऑफ कोर्स कम से कम 300-400 करोड़ तो खर्च हुए होंगे बिकॉज ही वेंट टू 4 डिफरेंट स्टेट्स एंड बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस उनके साथ आए फोटोज खिंचवाने के लिए. एंड ऑन द कॉन्ट्रडिक्टरी मैंने एक रील देखी जहाँ पे सुनील छेत्री को एक अवार्ड दिया जा रहा था एंड दैट मिनिस्टर हैड द ऑडेसिटी टू मूव हिम ऑन द साइड टू बी इन द फ्रेम. I, as an Indian person who does not even watch football, I'll be honest, felt so bad about it कि एक स्पोर्ट्स पर्सन जिसे उतनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, पैसा तो दूर की बात है, हम एक बाहर के प्लेयर को लाके सर आंखों पे बिठा रहे हैं लेकिन अपने ही प्लेयर को उतनी तवज्जो नहीं दे रहे हैं. हाउ डिड यू फील अबाउट दैट? ये होता है, ऑफ कोर्स यू फील रियली रियली बैड, बट प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने स्टार्स को वो वैल्यू नहीं दे पाते हैं जो हम लोग बाहर के स्टार्स को देते हैं. बाहर के स्टार्स के साथ हम बिहेव बहुत डिफरेंट करते हैं. अब आप स्टार्स की बात छोड़ो, आप इंडिया गेट पे भी चले जाओ, आज भी हम लोग फॉरेनर्स के साथ सिर्फ फोटो खिंचवा रहे हैं बिकॉज वो फॉरेनर्स हैं, इररिस्पेक्टिव वो कौन है, चाहे वो वहां पे घूमने आया है. ये माइंडसेट को चेंज करने के लिए टाइम लगेगा, धीरे धीरे चेंज भी हो रहा है. बट एट द सेम टाइम कुछ अच्छा भी हुआ था. जब मेसी से मिलने सुनील छेत्री आए थे स्टेडियम में, तो पीपल, द क्राउड स्टार्टेड calling his name, which I think was the moment, right? So Messi also realized that he is a big person in this game for Indians, actual sports lovers. I'm sure that would have been very, very emotional for Sunil as well, because I think उनकी retirement के बाद ये state हुआ था. But मैं बात करूँगी 2025 क्वालिफायर के बारे में, राइट, जो कतर के साथ हुआ. अगेन जब मैंने वो वीडियोस देखी, इट वाज वेरी वेरी क्लियर कि बॉल बाहर जा चुकी थी और फिर गोल किया गया. बट रेफरी ने शायद ये स्टेटमेंट दिया कि मैं राइट साइड पे था और मेरे को वो साइड नहीं दिखी. क्रिकेट में हर एंगल पे VRs लगे होते हैं, तो फुटबॉल में क्यों नहीं? नहीं, फुटबॉल में भी हो रहा है, बट थिंग इज, वन, it's very expensive to install the VAR, and second, फुटबॉल ना एक बहुत फास्ट पेस्ड गेम है. अभी भी VAR आने के बाद भी there is a certain percentage of fans and professional players and people involved into football who are not a big fan of VAR. उनका क्या मानना है, just play on. Okay, a decision went wrong, decision did not go your way, but there will be many times where decision will go your way, जबकि वो एक wrong decision होगा. But जो genuine football fans हैं, वो लोग क्या चाहते हैं, गेम बहुत फास्ट पेस होना चाहिए. इतना स्टॉपेज मत लो कि एक इंसिडेंट चल रहा था, फास्ट गेम चल रहा था, और क्योंकि फुटबॉल में एक जो लोग फुटबॉल देखते हैं, उनका मजा यही आ रहा है कि इतना फास्ट गेम चल रहा है, यहाँ पे एक्शन हो रहा है, वहाँ पे एक्शन. लेकिन अगर आप जैसे क्रिकेट में हर एक बॉल के बाद टाइम है, हर एक ओवर के बाद एक एड ब्रेक का टाइम है, वो फुटबॉल में पॉसिबल नहीं है. इसलिए लोग एक तो VR के, ऑल्दो बिकॉज टेक्नोलॉजी है और अब इतना जो टॉप लीग्स हैं उसमें यूज हो रहा है, वर्ल्ड कप में यूज हो रहा है, बाई चांस उस पर्टिकुलर मैच में नहीं था, आने वाले टाइम में AFC के मैचेस में भी वो आने लग जाएगा. कमिंग बैक टू दैट पर्टिकुलर मैच, बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं ये चीटिंग हो गया, इट वॉज ऑन पर्पस. इट्स माई इंडिविजुअल ओपिनियन, ह्यूमन एरर है जो कि हिस्ट्री से होता है, अभी भी हो रहा है, आने वाले टाइम पे भी होगा. आप कितनी टेक्नोलॉजी ले आओ, आप धीरे धीरे ह्यूमन एरर को कम कर सकते हो, बट एलिमिनेट नहीं कर पाओगे. राइट, बट दैट वन ह्यूमन एरर, डोंट यू थिंक चेंज्ड द डेस्टिनी ऑफ आवर फुटबॉल टीम? It did. There are, but if you look at it, like the world top footballing nations have suffered because of human errors. इसलिए ये टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है. It's just that we have to take it with a pinch of salt. Of course, yeah. सोनू, इसके अलावा मुझे बताओ, जैसे हमारे कुछ एस प्लेयर्स, बाईचुंग भूटिया, गुरप्रीत सिंह संधू, इवन सुनील, they went and wanted to play or tried playing for Europe. फर्स्ट ईयर लीग्स नहीं खेल पाए, बट सेकेंड ईयर में खेले हैं और कोशिश पूरी करी है. तो आपको क्या लगता है कि हमारे प्लेयर्स बाहर क्यों जाना चाहते हैं? बाहर क्यों जाना चाहते हैं? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज बिकॉज वो एक बेटर लीग्स हैं. एक बेटर लीग्स है, वहाँ पे एक प्लेयर का जो ग्रोथ होने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं. बिकॉज आपने, फॉर एग्जांपल, ये जो तीनों नाम आपने लिए,
गुरप्रीत, बाईचुंग भाई, छेत्री, ये लोग इंडिया में एक सर्टेन लेवल पे आ चुके थे, टॉप लेवल पे थे, टॉप लेवल पे परफॉर्म करे. नाउ दे वांटेड टू चैलेंज देमसेल्व्स एंड ग्रो इवन फर्दर. दैट्स व्हाई ये लोग बाहर जाना चाहते थे. बिकॉज like how cricket is in India, football is in most of the Western European world. Yeah. तो इसलिए एक one of the main reason है कि हर प्लेयर बाहर जाना चाहता है. बट प्रॉब्लम क्या है, फीफा का और हर एक कंट्री की लीग का एक रूल होता है कि आप एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ फॉरेनर्स को ही उस कंट्री में खिला सकते हो. Right. तो नाउ फॉर एग्जांपल लेट्स से फॉरगेट यूरोपियन कंट्रीज, वो तो और भी ज़्यादा लेवल है. लेट्स से जापान की जो जे लीग है उसमें आपको 3 एशियंस अलाउड हैं. उसमें आप 3 फॉरेनर्स अलाउड हैं. उसमें आप चाहोगे कि एक टॉप ब्राज़ीलियन या टॉप अर्जेंटीना या टॉप इंग्लैंड का प्लेयर लोगे या एक टॉप इंडिया का प्लेयर लोगे, क्योंकि वो स्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. इंडिया में भी जो हमारी ISL हो रही थी उसमें हमें 4 फॉरेनर्स अलाउड हैं और 3 फॉरेनर्स 1 एशियन अलाउड है. उसमें इसलिए वी आर सो पर्टिकुलर क्योंकि 1 रॉन्ग साइनिंग कैन डिसाइड द फेट ऑफ योर सीजन. इसलिए ये एक पर्टिकुलर साइनिंग इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए हम इंडियन प्लेयर्स को इतनी इजीली अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है बाहर. राइट. नो, फेयर इनफ. टॉकिंग अबाउट ISL, आई थिंक काफ़ी सही जा रहा था ISL टू बिगिन विद. लाइक एज यू सेड, फॉरेन प्लेयर्स भी आ रहे थे, अच्छे आ रहे थे. लाइक राइट, आई थिंक रोबर्टो वाज देयर एंड एलेहांड्रो वाज देयर एंड ज़ीको वाज देयर. सडनली व्हाट हैपेंड? सडनली तो नहीं, जस्ट दैट के एक टेन्योर था, कॉन्ट्रैक्ट था विच वाज टिल 2025 FSDL के साथ. वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ. एंड रीजंस बहुत सारे हैं. जैसे बीच में गवर्नमेंट का एक इंटरवेंशन था जिसकी वजह से स्टे लग गया, फिर फीफा ने हमें बैन लगा दिया. उसकी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स पीछे हट गए. एक क्लियर रोड मैप नहीं है आगे. और प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, देयर आर टू मेनी मूविंग पार्ट्स. और उन सबको अलाइन करना बड़ा डिफिकल्ट हो गया है. नो वन हैज अ बैड इंटेंशन. नाउ द क्लब वांट्स टू प्ले, फेडरेशन वांट्स फुटबॉल टू हैपन, but it's just that to bring everyone on table and be aligned is a biggest challenge right now. And we are struggling as a footballing federation, we are struggling to bring on a good commercial partner. उसकी वजह से ये इतना डिले आ गया. उसकी वजह से शायद आपने देखा होगा प्लेयर्स ने वीडियोस वगैरह भी पोस्ट किए हैं. Correct. So now when the players are posting video, it's not that हम लोग किसी से कंप्लेन कर रहे हैं. It just players are, you know, they just want to share their plight के प्लीज फुटबॉल स्टार्ट करो बिकॉज यू नो आदत नहीं है इतना लंबा घर पे बैठने की. एग्जैक्टली. एंड आई थिंक अभी नहीं किया ये सीजन, आई थिंक 2026 में ही होना था. एंड नहीं 2025 में 20 तो सीजन यूजुअली स्टार्ट हो जाता है हमारा अक्टूबर के सितंबर अक्टूबर में ISL स्टार्ट हो जाता है. उससे पहले ड्यूरेंट कप होता है, सुपर कप होता है. तो ड्यूरेंट कप और सुपर कप तो हुआ, लेकिन बिकॉज जो ISL जो मेन लीग है हमारी कंट्री की वो नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ too many reasons. Right. So let's talk about the elephant in the room. Let's get it out, Sonu. I don't know आप कितनी capacity में इस बारे में बात कर पाओगे, but I want to ask this question to you. Let's talk about the alleged corruption that's going on in the AIFF, right? And again, if I'm not wrong, आपने भी बताया कि contract खत्म हो गया था. एक RFP भी निकाली गई new commercials के साथ जिसमें I think 37.5 crores मांगे गए थे एज अ वेलफेयर, विच इज़ नॉट एट ऑल अ बिग अमाउंट. आई थिंक क्रिकेट या किसी और स्पोर्ट्स में एक प्लेयर को इससे ज़्यादा अमाउंट मिल जाता है, राइट? रिलायंस ने भी अपना हाथ पीछे खींच लिया. सो व्हाई डू यू थिंक दैट हैपेंड? डू यू थिंक दैट दे डोंट ट्रस्ट द टैलेंट, or they believe that the money that they invest now will not be used for the right reasons? No, not trusting the talent though इस पिक्चर में ही नहीं है. इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद प्लेयर्स. इट हैज गॉट एवरीथिंग टू डू विद अ लॉन्ग टर्म विजन. कि लॉन्ग टर्म विजन क्या होगा? लाइक यू राइटली सेड 37.5 crores इन्वेस्ट करना इज नॉट अ बिग थिंग फॉर अ कंट्री लाइक आवर्स. मतलब हम इस वक्त
जिस एरिया में बैठे हैं यहाँ पे कम से कम 10 लोग होंगे जो इजीली वो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं. फॉरगेट रिलायंस तो वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक इट्स लाइक इंडिया. रिलायंस इज इंडिया. सो मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम. प्रॉब्लम इज कि क्या विजन है, वो विजन में हम लोग अपने आप को अलाइन कर पाते हैं या नहीं. जो AIFF जिस तरह से चीज़ों को फॉरवर्ड लेके जाना चाहता है, क्या FSDL उसके साथ रेजोनेट करता है या नहीं, इसलिए डिले हो रहा है. ऐसा नहीं है कि रिलायंस अभी इंडियन फुटबॉल के अगेंस्ट हो गया है या फेडरेशन में कुछ लोग हैं जो इंडियन फुटबॉल, हर कोई अच्छा चाहता है. देयर इज नो वन फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम अ प्लेयर टू फेडरेशन टू कमर्शियल पार्टनर्स जो इंडियन फुटबॉल को आगे नहीं लेके जाना चाहती. बट इट्स जस्ट दैट कि वो सब साथ में एक लाइन में नहीं चल पा रहे हैं. प्रॉब्लम ये. एंड लाइक यू टच्ड अपॉन करप्शन, यू नो, यू से इट और नॉट, वी ऑल नो कि वो हर जगह है. राइट. नाउ आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ फेडरेशन टू कमेंट ऑन इट कि हाँ हो रहा है या नहीं हो रहा है. बट ये एक परसेप्शन बना हुआ है कि हाँ एनी बॉडी, बी इट स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, एनीवेयर you'll go, ये एक ऐसा हमारे मन में बैठ गया है. फॉरगेट गवर्नमेंट, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ, आपको उसमें आजकल ट्रस्ट नहीं है. तो इट्स अ नॉर्म. प्रॉब्लम उस चीज का नहीं है, ना ही प्रॉब्लम करप्शन का. प्रॉब्लम है कि जो हमारा फ्यूचर प्लान है वो कमर्शियल पार्टनर के साथ अलाइन होना चाहिए. एंड बिकॉज अभी क्या हो रहा है कि बिकॉज ऑफ देयर वर लॉट ऑफ इश्यूज जिसकी वजह से गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व होना पड़ा. दैट हैज डिलेड द प्रोसेस इवन फर्दर. राइट. तो एंड बहुत जो अगेन फुटबॉल लवर्स हैं ना, दे आर आल्सो क्वेश्चनिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ मिस्टर कल्याण चौबे. Some of them are also saying that we probably need a president as good as Mr. Shah for BCCI. आप बोल रहे हो विजन क्लियर नहीं है, विजन अलाइन नहीं है, तो ये उनका रोल है विजन अलाइन करना. What do you have to say about that? नहीं, बट मैं बहुत लोगों को कभी कभी बोलता हूँ कि जैसे अगर एक घर में 4 लोगों की फैमिली है ना, उन 4 लोगों को कन्विंस करना कि किस रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है, वो कभी कभी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है. The position our president is, it's not that easy to convince everyone कि हाँ ये चीज ऐसे होगी. Then it becomes a dictatorship. In a democracy जहाँ पे votes होंगे, वहाँ पे it's not that easy जितना लोगों को लगता है कि क्यों नहीं कर रहे हैं. आप तो प्रेसिडेंट हो, आपके लिए तो 2 मिनट का काम होना चाहिए. अगर 2 मिनट का काम होता तो इन सब से अगर कोई सफर कर रहा है तो सबसे ज्यादा रेपुटेशन ऑफ AIFF इज सफरिंग. वो कभी नहीं चाहेंगे ऐसा हो. बट देन आई एम नॉट देयर. हमारा जो काम है एज अ फुटबॉल एजेंट वो इतना दूर है इन चीजों से कि मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है. बट ये मैं सोच सकता हूं कि इट विल बी रॉन्ग ऑन माई पार्ट कि मैं एक कंफर्टेबल चेयर पे बैठ के ये कमेंट कर दूं कि यार इसकी गलती, इसने ऐसा क्यों नहीं किया. बिकॉज हमें नहीं पता कि कितना डिफिकल्ट होगा इस चीजों को कंट्रोल करना. यस, जो सिचुएशन है इस वक्त इंडियन फुटबॉल की वो नहीं होनी चाहिए थी. करेक्ट. एंड देन उसमें बहुत लोग इन्वॉल्व हैं. सब लोगों के कोई कुछ डिसीजंस रहे होंगे, कुछ एक्शंस रहे होंगे जो सही नहीं थे. वो एक्शंस की बेबी इंटेंशंस करेक्ट थी, लेकिन वो राइट जगह पर इम्प्लीमेंट नहीं, राइट तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए, जिसकी वजह से हम लोग आज की सिचुएशन में हैं. तो इट विल बी रॉन्ग to pinpoint and point a finger at any one particular person because it's not possible कि एक की गलती से हमारी सिचुएशन इस वक्त ऐसी हो गई है. Right. So, what according to you think went wrong in terms of, is it the players or the talent in the country, or is it the system on the grassroots that needs to be upgraded for us to be in a better position? The system and the grassroots. मतलब टैलेंट का प्रॉब्लम नहीं है. अगर हम एक छेत्री प्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड यू नो आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल नो, बट छेत्री ने फर्स्ट प्रोफेशनल क्लब अगर उसका मोहन बागान था तो उससे पहले कभी प्रोफेशनल ट्रेनिंग ही नहीं ली. वो स्कूल में खेलता था. एंड इमेजिन एक ऐसा रॉ टैलेंट निकल के आया जिसके लिए कुछ एफर्ट्स नहीं किया किसी ने. राइट. इंडिया में टैलेंट की प्रॉब्लम नहीं है. इंडिया में बहुत नीरज चोपड़ा है, बहुत लिएंडर पेस हैं, बहुत विराट कोहली हैं. हर यू पिक अ स्पोर्ट. ये जो हम लोग ओलंपिक्स में कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे जो मेडल्स लेके आ जाते हैं, हमें उनकी स्टोरीज तो पता चले लेकिन उनकी जर्नी बहुत कम लोगों को पता है. राइट.
हमको वो फैसिलिटीज जो एक अमेरिकन एथलीट को या एक चाइनीज एथलीट को मिलती है उसका 10% भी नहीं है। नाउ वो सिस्टम ऐसा बन गया है, ग्रास रूट हमारा नहीं है उस लेवल पे जिस लेवल पे हम लोग कल को लेट्स से हम लोग स्पेन के साथ या इंग्लैंड के साथ compete करना चाहें, या फॉरगेट स्पेन एंड इंग्लैंड, हम लोग एशियन जायंट्स के साथ compete करना चाहें। So if you were, let's do a role play, Sonu. If you were in a position जहाँ पे आपको ये अपॉर्चुनिटी दी जाती कि जितना 300-400 करोड़ हमने मेसी को बुलाने में लगाया, उसकी जगह पे आप ग्रास रूट प्रॉब्लम सॉल्व करो और वो पैसा हम आपको देते हैं, तो कौन सी ऐसी फर्स्ट 3 प्रॉब्लम्स हैं जिसको आप सॉल्व करते हैं? एक तो प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा हैं कि टॉप 3 चुनना बड़ा डिफिकल्ट है, बट एक ये मेरा बहुत इंडिविजुअल थॉट है कि मैं चाहता हूँ कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत मेजर प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में, बट स्कूल्स हैं, स्कूल हर एक स्कूल के पास एक ग्राउंड है। ये मैं सोचता हूँ कि हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि हर एक स्टेट में सारे स्कूल्स के साथ सारे कोचेस की ट्रेनिंग हो कि इंडिया ऐसा फुटबॉल खेलेगा, इस लेवल से ये नहीं हमारा, अगर हमारा टैलेंट ये है, ठीक है, हमने उसको आइडेंटिफाई किया, ए स्टेट का कि केरला का लेवल इधर है तो केरला का पूरा स्टेट इस लेवल से फुटबॉल खेलेगा, पूरे स्टेट के सारे स्कूल, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, ये टाइप की कोचिंग होगी, इस लेवल की कोचिंग होगी। उस पे हमें उनको एजुकेट करना पड़ेगा। फिर जैसे जो हमारी कंट्री में एज फ्रॉड होता है उस पे बहुत स्ट्रिक्टली एक्शंस लेना पड़ेंगे, एंड everyone who is in smallest or the highest capacity जो इंडियन फुटबॉल में अटैच्ड है वो अकाउंटेबल हो। हर चीज ओपन में हो। अगर लगा लो किसी भी स्टेट, अगर स्टेट की फेडरेशन है या वहाँ पे फुटबॉल की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है तो उनसे सवाल पूछे जाएं। नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस में वो मेन एजेंडाज होने चाहिए, बिकॉज एंड ऑफ द डे वही लोग स्पोर्ट्स में होने चाहिए हु हैज देयर हार्ट एंड सोल इनटू इट, जिनका डे एंड नाइट यही ड्रीम होना चाहिए कि इंडियन फुटबॉल को वर्ल्ड मैप में कैसे लेके आना है, उससे पहले एशिया में हम लोगों को कैसे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन निकल के हम कैसे आ सकते हैं, तो उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। सो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर, fraudulent activities you want to curb, and thirdly आप चाहते हो कि एक गवर्नमेंट अमेंडमेंट या गवर्नमेंट मुद्दा बने। गवर्नमेंट, आप किसी भी इस वक्त प्राइवेट स्कूल में चले जाओ, आपको ऐसे कोचेस नहीं मिलेंगे जो एकदम पैशनेट हैं उस गेम को लेके। नो, आई डोंट वांट टू ब्लेम एनीथिंग, बिकॉज अब आप क्या करोगे, मैं ही इतने फुटबॉल कोचेस को जानता हूं जिनको फुटबॉल कोचिंग के अलावा उनकी ड्यूटी होती है कि छुट्टी के टाइम पे आप गेट पे खड़े हो जाओ, बच्चों को आने जाने देखने जाने दो। सुबह सुबह टाइम पे आके तो आप देखो कि बच्चे फॉर्म में आईडी चेक करो, मैंने खुद देखा है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो कोच जो जब वो ये कोचिंग और ये सब कर रहा था उसका ये एक ही पैशन था कि मुझे यंग प्लेयर्स के अंदर एक वो पैशन और टैलेंट को मुझे आइडेंटिफाई करना है। अगर उसको आप इन सब चीज़ों में, इंडिया वही एंड ऑफ द डे मुझे ऐसा लगता है कि एक तो इंडिया ना स्पोर्टिंग नेशन नहीं है, एंड यू कांट ब्लेम इंडिया बिकॉज हमारी इश्यूज ही बहुत अलग हैं। हमारे इश्यूज ऐसे हैं कि आज भी कितने लोग सिर्फ इसलिए पीपल डाई जस्ट बिकॉज दे डोंट हैव फूड टू ईट, दे डोंट हैव अ शेल्टर टू स्लीप इन। दिल्ली में हमको कुछ टाइम में अगर बहुत ठंड बढ़ जाएगी तो हमें इसकी न्यूज़ मिल जाएंगे। तो उन सब में स्पोर्ट की जो प्रायोरिटी है ना वो इतनी नीचे आ जाती है कि फिर एक प्रैक्टिकली एक्सपेक्ट करना कि हम लोग ओवरनाइट स्पोर्टिंग नेशन बन जाएंगे, it's not right, it's not practical. But kahin na kahin, is it not the fault of us as individuals also? I mean, while I agree that we have a lot of other issues, but cricket के साथ तो ऐसा नहीं होता है। People fight over cricket like anything. उतनी तूल हम फुटबॉल को दे ही नहीं रहे हैं ना। नहीं, एक तो क्रिकेट की एक एडवांटेज क्या हुई कि जब क्रिकेट ब्लूम हो रहा था वर्ल्ड में, बहुत कम नेशंस खेलते थे। अगर लगा लो आज के टाइम पे मैं आपको बोलूं कि आप सिर्फ महाराष्ट्र से एक टीम बनाओ, सिर्फ महाराष्ट्र के प्लेयर्स खेलेंगे और वो T20 वर्ल्ड कप खेलेगा।
you will not be surprised अगर वो क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल्स में पहुंच जाएगी टीम, because that's the kind of talent we have in our country, and we do not have that kind of competition internationally. और जब कोई कंट्री अच्छा करती है इन एनी स्पोर्ट, उसके साथ अपने आप को अटैच करना बहुत इजी होता है, रादर देन आप कितनी बार सपोर्ट करोगे एंड इफ एट इंटरनेशनल लेवल योर टीम इज नॉट डूइंग गुड. इसलिए हम लोग बाकी स्पोर्ट्स में थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं. 1983 में जब वर्ल्ड कप जीते, बाई चांस क्या हुआ, जब हम वर्ल्ड कप जीते उसके आसपास ही टीवी आ गया. वो दोनों चीजें इतने अच्छे से मिक्स हुई कि लोगों को एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट मिलना, और एवरीवन स्टार्टेड रिलेटिंग टू इट. दैट्स व्हाई क्रिकेट ने बड़े अच्छे से अपनी जगह बना ली इन एवरी हाउस होल्ड. लाइक फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स टू योर ग्रैंड किड्स, एवरीवन वॉचेस क्रिकेट. तो इट बिकम्स ईजी टू रन दैट स्पोर्ट कंपेयर टू अदर्स. राइट. एंड सोनू, एक और बात बताओ, यू ऑल्सो डू स्काउटिंग फॉर टैलेंट, राइट? अगर आज मेरे घर में एक बच्चा है जिसको फुटबॉलर बनना है, एज अ पेरेंट शायद मैं उसे बोलूँगी कि इसमें पैसा नहीं है बेटा, कुछ और चूज कर ले. बट हाउ ट्रू इज दैट? एंड यू एज अ स्काउटिंग पर्सन, व्हाट आर द क्वालिटीज यू लुक एट टू शॉर्टलिस्ट somebody in that game? To answer your first question, सिर्फ अगर आप उसको बोलो कि पैसा नहीं है, पैसा तो है. ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है. हाँ, बट आप किससे कंपेयर कर रहे हो? आपका बेंचमार्क क्या है? क्या क्रिकेट जितना पैसा नहीं है? क्रिकेट जितना पैसा नहीं है. लेकिन बाकी स्पोर्ट्स से कंपेयर करोगे तो हाँ, बहुत पैसा है. यू कैन मेक अ रियली हैंडसम लिविंग आउट ऑफ फुटबॉल. तो वो पार्ट तो क्लियर है. अगर आपके घर में कोई टैलेंटेड बच्चा है, बस यही है कि मैं लाइक व्हेन आई डू पेरेंट्स काउंसलिंग के फोर्स नहीं करना है. आप अपना ड्रीम अपने बच्चे के थ्रू नहीं जीना है. कि आपका बच्चा स्पोर्ट्स खेलना चाहिए फॉर हिज फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, नॉट बिकॉज कि मुझे उसको प्रोफेशनली बनाना है. There was a time I used to run a football school, and आज बच्चे को एडमिट कराया एकेडमी में. उसी मीटिंग में वो फादर मेरे से पूछ रहा है कि मेरा बेटा दिल्ली स्टेट कब खेलेगा, इंडिया कब खेलेगा. सो इस मेंटालिटी से बाहर आना है. बच्चों को प्रेशर नहीं होना चाहिए, बट अ चाइल्ड शुड एंजॉय हिज टाइम विद फुटबॉल व्हेन ही इज प्लेइंग फुटबॉल, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एनी स्पोर्ट. राइट. एंड सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका कि आप क्या टॉप 3 क्वालिटीज उस बच्चे में देखोगे उसको ऑन बोर्ड करने के? जो हम लोग स्काउट करते हैं वो मोस्टली प्लेयर्स वो होते हैं जो ऑलरेडी एक सर्टेन लेवल पे खेल रहे होते हैं. तो मेरा पर्टिकुलर ट्रेड जो मैं देखता हूँ, ऑफ कोर्स इट्स अ गिवन कि अगर उस लेवल पे चले गए तो टैलेंट तो है. अगर एक प्लेयर है जो ऑलरेडी किसी मतलब अंडर 17 इंडिया या अंडर 19 इंडिया या किसी क्लब की रिजर्व टीम में खेल रहा है, तो मतलब उसके पास टैलेंट तो है. उसके सेकंड मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसका कैरेक्टर कितना स्ट्रांग है, वो कितना सीरियस है अपनी गेम को लेके. एक वन-ऑन-वन कॉन्वर्सेशन में उसकी वो फायर कितनी है उसके अंदर, वो कितना फोकस्ड है. ये छोटी छोटी चीज़ें मेरे को बहुत इंप्रेस करती हैं. एंड व्हेन आई सी समथिंग लाइक दिस, तो मेरे को लगता है कि हाँ, इसके ऊपर काम करने में भी बहुत आई विल आल्सो एंजॉय इट. आई विल बी एबल टू रीलिव the small victories, the small when life as a football agent ये बड़ा होता है कि वो जीतते हैं तो तुमको लगता है कि तुम जीत गए. वो हारते हैं then you feel as a personal loss. तो ये like to summarize it, the first and topmost is how talented the kid is. अगर टैलेंट के बाद अगर उसका कैरेक्टर भी स्ट्रांग है, उसकी हैबिट्स भी बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत फोकस्ड है, तो दीज आर ऑलवेज एन एडेड थिंग जो हमको लगता है कि हाँ दिस किड हैज समथिंग टू मेक इट बिग. राइट. सो बेसिकली टैलेंट है, उसे आप एक डायमंड को जैसे तराशते हैं, आप उसे तराश दोगे. बट डू वी हैव गुड अकेडमीज इन इंडिया व्हिच एक्चुअली help this talent outgrow? Yeah, there are some really good academies.
I don't want to name because वो हो जाएगा कि biased हो रहा है, but then there are some really good academies. See, any academy जिसमें मैं like especially for parents who wants to put their kid into any sport, and if it's football in particular, any academy or school जिसमें 3 to 4 days training हो रही है and weekly match हो रहा है, it's a good start. Okay. Second, the academy should be very close to your house. Okay. Academy तो नहीं होगी, of course, football school. Right. Because academy is तो you usually full time academy setup होता है जहाँ पे बच्चे फिर रहने लगते हैं. But to start with, if your kid is let's say 7-8 years old, start with a football school which is very close to your house, ताकि distance की वजह से class miss नहीं होनी चाहिए. वहाँ पे कोशिश रहे कि 3 to 4 days training हो रही है, सैटरडे फ्राइडे को मैच हो रहा है, संडे को रेस्ट हो रहा है. फूड पे आप ध्यान दे रहे हो, उनकी स्लीपिंग हैबिट्स पे ध्यान दे रहे हो, उनकी हाइड्रेशन पे ध्यान दे रहे हो. वेरी सिंपल. पहले ही दिन अपने बच्चे को एक प्रॉपर एथलीट बनाने की कोशिश ना करें. लेट देम एंजॉय, दैट्स ऑल यू वांट. Right. Fair enough. I think very important message, Sonu, for the parents, right? Because strict होते हैं तो हो ही जाते हैं. अब आप मुझे बताओ, we'll come back to you, right? बहुत सारे बच्चे हैं हमारी कंट्री में जो स्पोर्ट्स नहीं खेलते बट दे वांट टू गेट इनटू स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, राइट? स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी गुड करियर, बहुत ग्लैमरस दिखता है. हाउ ट्रू इज इट? लाइक कितना ग्लैमरस है, और what path should these kids take if they really want to get into PR and sports management? See, glamorous है भी because you are always around these athletes which are superstars. तो glamour part तो है, but then do not get into it just because of the glamour, because hard work बहुत ज़्यादा है. And it should be very clear in your heart and mind कि आप करना क्या चाहते हो. जब आप स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कर रहे हो तो वो पाथ क्या है, आप कहाँ पहुँचना चाहते हो, आपकी डेस्टिनेशन क्या है. बिकॉज अगर डेस्टिनेशन क्लियर है तो जर्नी से फ़र्क नहीं पड़ेगा. अगर जिसकी डेस्टिनेशन क्लियर नहीं है, जिसको ग्लैमर है, तो ग्लैमर वाले पार्ट तक जब तक आप पहुँच के वो इन्जॉय करोगे ना, तो जर्नी, एंड बी इट एनी फील्ड, आप कोई भी फील्ड ले लो, वो जर्नी वाला पार्ट इंजॉय करना बड़ा इंपॉर्टेंट है. और वो पार्ट आप तभी इंजॉय कर पाओगे जब आपकी डेस्टिनेशन इज वेरी क्रिस्टल क्लियर इन योर हेड. बिकॉज वो स्ट्रेट पाथ नहीं है, वो अप एंड डाउन है, जिगजैग है. कभी यू विल फेस डिफीट, यू विल फेस रोड ब्लॉक्स, समटाइम्स यू विल हिट अ वॉल, तुम्हें लगेगा ये मैंने क्या कर लिया. बिकॉज मोस्ट ऑफ द एक तो ऑन फील्ड मोस्टली जॉब्स हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितनी भी हैं, तो आप उसके लिए रेडी हो क्या? स्क्रैच से स्टार्ट करने के लिए रेडी हो? इफ यस, देन यस, इट्स एन अमेजिंग करियर पाथ टू चूज फ्रॉम. राइट. ये जो रील आई अभी जिसमें गुरप्रीत सिंह संधू और बहुत सारे और इंटरनेशनल प्लेयर्स भी प्ले कर रहे हैं टू फीफा टू कम एंड सेव, व्हाट एग्जैक्टली आर दे एक्सपेक्टिंग फीफा टू डू? अभी ये जो वीडियो है, इट्स लाइक, इट्स नॉट that they're not complaining or they're not pinpointing, it's just that के desperate हो गए हैं बहुत. it's like एक प्लेयर के लिए इससे इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है कि वो हर एवरीडे ट्रेनिंग कर रहा है और वो वीकेंड पे वो मैच हो रहा है, वो एक्साइटमेंट है. एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड प्लेयर्स के लिए शॉर्ट करियर है. ऑन एन एवरेज 30-32 तक कोई खेलते हैं, कुछ लोग मैक्सिमम 35 तक खींच लेते हैं. छेत्री एक्सेप्शन है जो इतना खींच के चला गया. नाउ इमेजिन उस शॉर्ट करियर में भी एक सीजन निकल रहा है उनका हाथ से. तो इसलिए उनको लग रहा है कि कोई तो हेल्प कर दो, कैसे भी हेल्प कर दो, सब लोग साथ में आ जाओ, क्या कर सकते हैं. तो ये एक प्ली वीडियो है. राइट. बट इतना प्रेशर है एंड यू आर बिहाइंड द सीन्स, राइट? ये प्रेशर आप पे भी तो आ ही रहा होगा. बहुत आ रहा है. तो हाउ डू यू डील विद दैट एंड व्हाट डू यू थिंक? आर यू होपफुल कि ये चीज़ें ठीक होंगी जल्दी? नहीं, ऑफ कोर्स आई एम होपफुल. आई एम ऑलवेज होपफुल इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन आई एम इन. कब होंगी, इट्स डिफिकल्ट टू पुट अ टाइमलाइन. प्रेशर बहुत आता है बिकॉज व्हेन यू मैनेज सो मेनी प्लेयर्स, एवरी प्लेयर विल कॉल यू वन डे. मतलब एवरी सिंगल डे, आज अगर प्लेयर ए का फोन आया है, कल प्लेयर बी का आएगा. यू हैव टू टेल देम, कीप देम इनकरेज्ड कि डोंट वरी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी.
फिर बहुत से प्लेयर्स हैं जिनको फाइनेंशियल स्ट्रेन बहुत आ रहा है, Hmm. बट देन यू नो वन आई कैन फील बैड अबाउट माई सेल्फ कि क्या हो रहा है, क्या लाइफ है, रोज इतने लोगों के कॉल्स आ रहे हैं, सबको हैंडल करना है, और यू जस्ट एक्सेप्टेड कि दिस इज माई जॉब. अब प्लेयर्स को सबसे ज्यादा जरूरत है मेरी. अब इनको ज्यादा इंकरेज करके रखना है, अब इनको मोटिवेटेड रखना है. सो मेरे को ऐसी परेशानी नहीं होती है. मतलब ऑनेस्टली मेरे को ऐसा लगता है कि अगर एक प्लेयर का कॉल आया है जो he was really low and dejected, and while keeping the phone down, if he's laughing and if he's smiling, and in the end we both say let's hope things get settled soon, because we cannot deny the fact that a lot of people are working really hard to sort this out. Right. ऐसा नहीं है कि लोग घर में बैठे हैं कि कुछ मिरेकल हो जाएगा. Every single day people who are involved, be it clubs, be it federation, be it commercial people, be it players, everyone is trying their best कि जितना जल्दी सॉल्व हो जाए हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे. So this gives us hope. Right. No, brilliant. Thank you so much for these insights, Sonu. Okay, one advice you would want to give to all the young football followers and aspirational players that will help them in their future. Enjoy the game. Do not compare your journeys with other. Your journey is very, very different. Believe in yourself. And never ever forget why you started playing the game. The day you'll forget कि मैंने फुटबॉल खेलना क्यों शुरू किया था और बाकी चीज़ों पे जब फोकस आने लग जाता है, that's when I have seen lot of young players जो off track हो जाते हैं. As long as you remember the day one when you kicked the ball, that fun, that passion, वो जो मज़ा आया था ना अंदर, वो मज़े को alive रखना है बस. बाकी सब चीज़ें will start falling in place. All right. So, Sonu, another one important question. We are talking about coaches. Yeah. And I think Sunil Chhetri से ज़्यादा बढ़िया कोच अभी इंडिया को मिल नहीं सकता. Is he planning to start his academy or get into coaching? No, I don't think so. See, I personally feel he'll be a fantastic coach because his game reading is unbelievable. Yeah. Like watching a football match, sitting with Chhetri is an experience. But I don't think he'll get into coaching because every time हम लोग उससे पूछते हैं कि तू क्या करना चाहता है लाइफ में आफ्टर फुटबॉल, तो जोकिंगली ऑलवेज से कि मैं अपनी लाइफ से अलार्म हटाना चाहता हूँ कि 2000 आई थिंक 2002 से ही इज़ प्लेइंग एज अ प्रोफेशनल प्लेयर और कह रहा है मैं अपनी लाइफ से अलार्म हटाना चाहता हूँ. एंड कोचिंग तो अलग ही लेवल डेडिकेशन और ये जो सिस्टम है वो और भी ज़्यादा है उसमें कोचिंग में. तो मुझे नहीं लगता कोचिंग में, बट यू नेवर नो. Yeah, I think we need another Kabir Khan for us, right? So, okay, well, disappointing to begin with, but I hope कुछ change हो इसमें. Another question I want to ask Sonu is that जो players under 19 category में खेलते हैं और बहुत outshine कर रहे होते हैं, वो vanish क्यों हो जाते हैं बड़ी लीग्स में आने के perspective से? नहीं, मतलब सब प्लेयर्स वैनिश नहीं हो जाते, बट बहुत कम प्लेयर ही आगे जाके बड़े प्लेयर बन पाते हैं. बिकॉज एक तो मुझे ऐसा, ये मेरी अगेन दीज आर माई पर्सनल व्यूज, जब आप अंडर 19 में शाइन कर रहे हो तब आप अपनी एज कैटेगरी में सबके साथ compete कर रहे हो. तो जो आपका सिस्टम था वो अंडर 19 की सिस्टम को बहुत अच्छे से सूट कर रहा था. नाउ व्हेन यू गेट इनटू द मेन टीम, नाउ सडनली यू आर competing विद द बिग बॉयज. तो अब जो मार्जिन ऑफ एरर्स हैं वो बहुत ही छोटे हो जाते हैं. नाउ अब नहीं चलेगा कि हाँ एक दिन आपने अच्छे से नहीं सोए, अब नहीं चलेगा कि एक दिन आपने थोड़ी एक्स्ट्रा कैलोरीज खा ली, आपने एक दिन मीठा खा लिया. ये अब नहीं चलेगा कि एक आप अच्छे से हाइड्रेटेड नहीं हो. बिकॉज लगा लो बहुत प्लेयर्स के साथ ऐसा हुआ है कि आप अच्छा खेल रहे हो, यू आर अ यंग प्लेयर, बिकॉज एज अ यंग प्लेयर यू अपने टैलेंट के साथ साथ आप अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा बैक करते हो कि मैं कर लूँगा. बट वॉट यू डोंट रियलाइज इट कि बहुत प्लेयर्स के साथ ऐसा हुआ है कि बिकॉज आपने अपना ख्याल नहीं रखा पिछले 15 डेज में, आप अच्छे से पानी नहीं पी रहे थे, यू वर नॉट हैविंग अ प्रॉपर स्लीप. एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच से पहले आपको एक माइनर सी इंजरी होगी, नॉट अ बिग इंजरी, बट उस इंजरी की वजह से आपके मैचेस मिस हो गए. मे बी दोज वर द मैचेस जिसकी वजह से यू कुड हैव योर, तो उनकी ट्राइजेक्टरी टूट जाती है. दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लोग अंडर 19 से जब हम लोग सीनियर टीम में जाते हैं
बिकॉज उनको वो उतने मैचेस नहीं मिलेंगे जितने वो अंडर 19 में रेगुलर खेल रहा था। उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीग होनी चाहिए विच शुड बी थ्रू आउट द ईयर, राइट। ताकि इनको ये जो जितने भी अंडर 19 के प्लेयर्स हैं व्हेन दे आर साइनिंग फॉर बिग क्लब्स, दे शुड गेट एटलीस्ट मिनिमम 25 to 30 मैचेस, जो कि इस वक्त सीनियर टीम भी स्ट्रगल कर रही है। बट इफ वी वांट टू इम्प्रूव, इफ वी डोंट वांट टू लूज आउट ऑन ऑल द टैलेंट जो हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, वी नीड अ सिस्टम जिसमें ये अंडर 17 बॉयज, अंडर 19 बॉयज को they get ample amount of matches throughout the year, because irrespective आप कितनी ही ट्रेनिंग कर लो किसी भी लेवल पे, unless and until you are not playing matches, वो इम्प्रूवमेंट, वो लेवल आपका कभी नहीं पहुंच पाओगे। करेक्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, FSDL का जो रोल है अभी बहुत इंपॉर्टेंट था, राइट? रिलायंस आई थिंक इज अ बिग नेम किसी भी स्पोर्ट्स को आगे लेके आने के लिए। उन्होंने कभी हाथ नहीं खड़े करे हैं अपने, एंड नाउ वी आर वेटिंग फॉर इन्वेस्टर्स टू कम इन। क्या आपको लगता है कि वो खुद इन्वेस्ट कर दें एंड वी शुड बी सॉर्टेड? ऑफ कोर्स पूरा इंडिया यही चाहता है, बट इट्स नॉट दैट इजी। एंड द थिंग इज दे वांट टू, मतलब आई डू नॉट नो इट personally, or there is no official statement from FSDL, but knowing them, I feel they want to. And not just them, there are a lot of people who wants to come and invest in Indian football, but एक बार सबको clarity चाहिए। Like I said, no, there are too many moving parts, उन सबको align करना ना इतना easy नहीं है, and it's एक को हम लोग point out करके नहीं कर सकते ये होगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, नहीं होगा। बहुत छोटी छोटी चीज़ें, सारी चीज़ें ये जो एक पजल की तरह है, वो सारे पजल, सारे उनको पीसेस को एक साथ फिट होना पड़ेगा, तभी ये चीज़ वापस से एक प्रॉपर सिस्टम ठीक होगा। अब मेरे पॉडकास्ट का ना एक सेक्शन है विच इज़ अ रैपिड फायर राउंड, जहाँ पे आई विल गिव यू अ स्टेटमेंट। मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी अ ट्रू एंड फॉल्स काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट। आप बताइएगा वो ट्रूथ है या फॉल्स है, और अगर फॉल्स है तो ट्रूथ क्या है। और कुछ वन वर्ड आंसर्स भी आपको देने होंगे बीच में। आर यू रेडी फॉर इट? ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। Indian players aren't good enough for European leagues. At senior level, yes, because they have not been provided the kind of training and facilities which those players have been provided. But at under 14, under 13, we are equally good. Okay. Foreign coaches guarantee success? No, they don't. They don't? Do we have any such Indian coach जिसे आप बोलोगे कि इनके पास अगर आप चले गए तो वारे न्यारे हो जाएंगे? नहीं, ऐसा तो वर्ल्ड में कोई कोच नहीं है। अब जैसे माय फेवरेट कोच वुड बी पेप गार्डियोला, जो मैन सिटी से हैं, उनको हर जगह सक्सेस भी मिली है, बट देन ये गारंटी नहीं दे सकते वो भी कि वो 100% सक्सेस उनको मिलेगी। ये कोई कोच नहीं है। बट हाँ, कुछ कोचेस हैं जिनका, और एक्चुअली क्या होता है कि हर कोच की एक स्ट्रेंथ होती है। कुछ कोचेस होते हैं हु आर really good man managers. अब अगर आप एक टीम को, let's suppose a team like मोहन बागान और बेंगलुरु FC और you know all these top teams, उसमें सारे stars हैं। उसमें अगर आप एक ऐसा कोच लेके आओगे जो who's very good with youth, he might not be as successful as he'll go to a team जहाँ पे जो टीम young players में ज़्यादा फोकस करती है। Right. तो ऐसा कोई कोच नहीं है जिसके साथ 100% सक्सेस आपको मिलेगी। Okay. FIFA rules protect young players. Yes. Okay. In the next few years, we will not see any other player filling the gap for Sunil Chhetri. Not true. There are few really good players. It's just that, you know, so for any player to be successful, and I can speak about Chhetri because, you know, we've grown up together from, you know, when we were like really young. For any player to be successful, there has to be a lot of things which have to fall in place. It's not just his talent. So बहुत talented players हैं country में, पहले भी थे, आगे भी आएंगे. But it's just that कि उनका हर step वो right step हो, उनका जो system है around them has to be in line with them, in sync with them. वो right coaching में घुस जाए, वो चीज़ें जब align होने लग जाएंगी, हमारे को छेत्री और उससे भी better players इंडिया प्रोड्यूस करने लग जाएगा. Now प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं है, प्रॉब्लम ये सारी चीज़ें हैं. छेत्री के केस में हर चीज़ लाइन में हुई, and he backed with his talent and hard work and dedication. अब
अब आप एक जो अभी एक लड़का 13-14 ईयर्स का है, उससे आप एक्सपेक्ट करोगे कि चेती की तरह तेरा फोकस भी हो, तेरी डेडिकेशन भी हो, तेरा हार्डवर्क भी हो, नहीं हो पॉसिबल। उसके लिए उसको एक टीम चाहिए, एक सिस्टम चाहिए। नाउ वी कांट रिलाई ऑन चांस, जो कि डेवलप्ड नेशंस इन फुटबॉल वो चांस पे रिलाई नहीं कर रहे, वो काम कर रहे हैं। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ किड्स को वो लोग ट्रेन कर रहे हैं कि हाँ एटलीस्ट हम कोशिश करेंगे कि इसका हर स्टेप राइट डायरेक्शन में ही हो। वो आगे बना नहीं बना वो उनके हाथ में नहीं है। पूरा वर्ल्ड ट्राई कर रहा है दोबारा मेसी क्रिएट हो जाए, होगा नहीं होगा लेकिन पता नहीं, बट वो ट्राई कर रहे हैं। चांस पे कोई नहीं बैठा हुआ। दैट्स वाई जो कंट्रीज हमेशा अच्छा करती हैं वही हमेशा अच्छा कर रही हैं। दैट्स वाई जर्मनी अगर एक सीजन वो डाउन होगा तो नेक्स्ट ईयर ही दे विल कम बैक एज यू नो वन ऑफ द टीम्स टू बीट इन वर्ल्ड कप। दैट्स द रीजन. If ISL does not happen again, then Indian football is going to extinct. No. इंडियन फुटबॉल वी हैव सर्वाइव्ड इससे पहले भी, अभी भी एंड फ्यूचर में भी, एंड आई कैन से इट ISL विल हैपन. Okay. उसका नाम कुछ और हो सकता है बट टॉप लीग तो होगी बिकॉज देयर आर इनफ पैशनेट पीपल इन दिस कंट्री जो फुटबॉल को अलाइव रखेंगे. एंड एंड ऑफ द डे मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ मोहन बागान ईस्ट बंगाल है इस कंट्री में, फुटबॉल कहीं नहीं जाने वाला. Right. Indian football team will still not be able to qualify for the next FIFA in 2031. It's difficult. But the practical answer would be, as of now, as of today, मुझे नहीं लग रहा है. But of course, I will always back up the team. मुझे नहीं लगता हम लोग कर पाएंगे. But you never know. Okay. One word for Sunil Chhetri. It's difficult to define in one word. It's a like उसको इंडिया में बोलते हैं कैप्टन, लीडर, लेजेंड. लीडर है, लेजेंड है. वन वर्ड में नहीं बट मैं एक लाइन में अगर बोल सकूं तो उसकी क्या आदत है कि वो जिस रोल में है उसको परफेक्ट करना है. नाउ एज अ फ्रेंड ही वांट्स टू बी सेट स्टैंडर्ड सो हाई कि एक फ्रेंड को ऐसा होना चाहिए. एज अ सन एक सन को ऐसा होना चाहिए. एज अ हस्बैंड एक हस्बैंड को ऐसा होना चाहिए. एज अ फादर एक फादर को ऐसा होना चाहिए. एक फुटबॉल प्लेयर को ऐसा होना चाहिए. एक कैप्टन को ऐसा होना चाहिए. सो ही पुशेस हिमसेल्फ टू द लिमिट ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड. एक वो बार बहुत ऊपर है. मतलब आई डोंट थिंक आई विल एवर बी अ फ्रेंड लाइक ही इज टू हिज फ्रेंड्स बिकॉज वो अलग ही लेवल लेके चला जाता है चीज़ों को. एज अ लीडर ऑल्सो पीपल लुक अप टू हिम, वी ऑल्सो लुक अप टू हिम. ही इज लाइक दैट इन एनीथिंग. वो कोई भी स्पोर्ट खेलता है, नॉट मेनी पीपल वुड नो, बट वो हर एक स्पोर्ट में इतना अच्छा है. अगर वो क्रिकेट खेलता है तो इतना ही अच्छा है. टीटी खेलता है तो टीटी में इतना अच्छा खेलता है. पिकल बॉल खेलेगा तो पिकल बॉल में इतना ही अच्छा. ही कैन नॉट बी सेकंड. He keeps pushing himself, and unless he reaches there. Right. So dedication and discipline, I think, is the key, or more अलग than level है that. उसका. And I think that's about it. Thank you so much, Sonu. आज का एपिसोड बहुत ही अमेजिंग निकला. आई थिंक बहुत सारी अंदर की चीज़ें पता चली. हमारे व्यूअर्स को ये भी समझ में आएगा कि जो होल्ड करके बैठे हैं वो लोग कि AIFF ये नहीं कर रहा है या ISL ख़त्म हो गया तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी, वो नहीं होने वाला है. एंड देयर इज़ स्टिल होप एंड आई विश एवरीवन द वेरी बेस्ट जिनको ये फुटबॉल देखना है और खेलना है. एंड ऐसे ही सुनते रहिए और देखते रहिए मेरा पॉडकास्ट, बिकॉज बहुत ऐसे अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग लोगों को मैं लेके आऊँगी जो सिर्फ आपकी मदद नहीं करेंगे, आपको अच्छे इंसाइट्स भी देंगे. थैंक्स अगैन. Thank you so much. Thank you for having me here.